Hello, Namaste, and welcome to Sanshia Brainry. We all know that climate change is drastically affecting the aquatic life, plant life, terrestrial life, and everything living on this planet. It is also adversely affecting the agricultural crops and their productivity. So, in this context, अगर हम बात करें कॉफ़ी की, which is one of the most important beverage throughout the world, and this beverage, we can say that it drives a multi-billion dollar global coffee industry, and it is also a support for the more than 100 million of coffee farmers. So we can say that this coffee, this beverage is the one of the important source of livelihood and boosting the economy throughout the world. बट जैसा कि हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो दिस क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली दैट इज आल्सो अफेक्टिंग इट्स प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉफी क्रॉप, दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमर्शियल बेवरेज. सो इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट हैज हैपेंड, रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक स्पीसीज जो वो रीडिस्कवर की है, डिस्कवर नहीं रीडिस्कवर की है. रीडिस्कवर इसलिए क्योंकि it has an interesting story, means it is lost and found species, so which has been rediscovered recently by the scientists in the forest areas of Africa, and they have found that this species actually it is equivalent to the taste that is similar to your Arabica coffee, which is the predominant coffee in the world, and side by side beside this it also has the characteristics to wear the warmer weather. सो हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी ए होप फॉर द फ्यूचर कॉफी इंडस्ट्री इन द era ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो टुडे वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर अबाउट ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो लेट्स सी. यू कैन सी है द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल जो है रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है इन ए पीयर रिव्यूड जर्नल नेचर प्लांट्स में, दैट अरेबिका लाइक फ्लेवर इन ए हीट टॉलरेंट वाइल्ड कॉफी स्पीसीज. So like I told you that scientists have recently rediscovered a coffee species, wild coffee species, which is heat tolerant, and its flavor is equivalent to your Arabica coffee, which is the predominant coffee in the world. So if you see that we know that कि जो coffee industry है, like I told you that it provides the livelihood for more than 100 million of coffee farmers throughout the world. और throughout the world जो है जो predominant जो coffee species हैं, they are mainly two जो species हैं कॉफी की, they are predominant throughout the world. One is your Coffea arabica, that is your Arabica coffee, ठीक है, and another one is your Robusta coffee, ठीक है. So we can say that these two coffee species are predominant in the world. अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन शेयर में, तो जो Coffea arabica है, it has the 56% share in the global coffee production, जो कॉफी अरेबिका है. और जो रोबस्टा कॉफी है, इट हैज 43% शेयर इन द ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में, ठीक है. तो वी कैन सी दैट 99% ऑफ द ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन एक्चुअली दैट इज ड्यू टू दिस टू स्पीसीज. वन इज योर अरेबिका एंड अनदर वन इज योर रोबस्टा. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन शेयर दैट इज एट्रीब्यूटेड टू अदर स्पीसीज, जो कि जैसे कि लिब्रिका कॉफी है. ओके, बट रिसेंटली हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. सो इन द era ऑफ क्लाइमेट चेंज, सो देयर प्रोडक्शन इज, वी कैन सी दैट इज लार्जली हैम्पर्ड बाय द इंसिडेंस ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट. तो यू कैन सी दैट जो कॉफी बेरी बोरर है एक्चुअली, दैट इज वन ऑफ द मेजर पेस्ट है कॉफी का. तो हमें ये कह सकते हैं कि ये जो कॉफी का जो ये बिगेस्ट एनिमी है, जो कॉफी का ये बिगेस्ट एनिमी है जो कॉफी बेरी बोरर है, ठीक है. Another thing is that incidence of new diseases हो रही है कॉफी में ड्यू टू द इन द era ऑफ क्लाइमेट चेंज. एंड क्लाइमेट चेंज है तो जो ड्राउट हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट इज आल्सो एडवर्सली अफेक्टिंग द ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन. एंड वी कैन सी दैट कि मोर देन 100 मिलियन फार्मर्स के लिए ये जो लाइवलीहुड का सोर्स है, मतलब एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है, कितना शेयर है इसका ग्लोबल इकोनॉमी में. So definitely we need to look for some best alternatives, isn't it?
सो इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन से दैट हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर द फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ this coffee supply chain, or we can say that for future proofing of this coffee industry and to support the livelihood of millions of farmers, we can have the three options. अगर हम broadly बात करें तो that is in the of climate change. क्या ऑप्शन हो सकती हैं? फर्स्ट थिंग इज कि जो हम उसका कॉफी जो ग्रोइंग एरिया है उसको रीलोकेट कर दें जहाँ पे वो बेस्ट सूटेड है, जिन एरिया में वो अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है। कि अगर वो इन एरिया में अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सपोज इट इज ग्रोन इन वन पर्टिकुलर एरिया, सो नाउ दैट पर्टिकुलर एरिया इज अंडर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, so we can shift that area of coffee growing to the new location, isn't it? So we can say that a relocation of the coffee farming to the areas with suitable climates, और स्पेशली अगर बात करें तो द हायर एलिवेशन, दैट कुड बी वन ऑफ द अप्रोच, इजंट इट? एक अप्रोच तो ये हो गई कि रीलोकेशन ऑफ एरिया, फार्मिंग एरिया जो है उसको, ठीक है। सेकंड थिंग इज अडेप्टिंग द कॉफी फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो मेजर कॉफी जो फार्मिंग को कॉफी ग्रोइंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उसकी एग्रोनॉमिक या कल्चरल प्रैक्टिसेस है, उनको अडॉप्ट करना, जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हम यूज ऑफ इरिगेशन करें, ठीक है, इन द ड्रॉट कंडीशंस में, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो शेड लविंग नेट्स हम यूज कर सकते हैं, या शेड प्रोवाइडिंग मल्चीज या नेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। So then third option could be the development of the, we can start breeding of the new climate resilient varieties, new cultivars, isn't it? So we can see that that could be one of the important component and one of the best approach. But for that also we need the germplasm resources or the new resources for the development of the varieties resilient to climate change. But जब हम बात करते हैं रीलोकेशन की, तो रीलोकेशन में ये तो अच्छा है कि जो हम मान लो हायर एलिवेशन को मान लो रीलोकेट कर रहे हैं किसी हायर एलिवेशन एरिया में, सपोज वी आर रीलोकेटिंग इट टू द इथियोपिया, हायर एलिवेशन एरिया ऑफ इथियोपिया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो ये जो जहाँ पे जो ये रीलोकेट होगी तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो होगा वहाँ उस एरिया में, एंड वी कैन सी दैट इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स ऑफ दोज हाईलैंड एरियाज। बट देयर इज ए वन डिसएडवांटेज भी है इसका, वो ये है कि जो एक तो ये होगा कि जब हम लैंड यूज के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वी कैन सी दैट कंपीटिंग लैंड यूज स्टार्ट हो जाएगा, तो उस चक्कर में इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट पीपल मे गो फॉर द डिफॉरेस्टेशन, दैट विल फर्दर एग्रावेट द क्लाइमेट चेंज। अनदर थिंग इज दैट कि जो लो लैंड एरिया में जो फार्मर हैं तो उनकी लाइवलीहुड का क्या, इजंट इट? तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज है इस रीलोकेशन वाले कंसेप्ट का। और जो ये अडेप्टिंग कॉफी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं एक्चुअली, जैसे कि न्यू इरिगेशन जो अप्रोचेज हैं, ड्रिप इरिगेशन है, ओके, या शेड लविंग नेट्स हैं, मल्चिंग यूज करना है, सो दैट में इनकर एडिशनल कॉस्ट इन द कॉफी प्रोडक्शन, तो दैट कुड नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव इन वन वे। देन थर्ड थिंग इज we are left with your development of breeding coffee varieties which are resilient to climate change, or we should look for the new sources, new wild species which could be the reservoir of different genes, isn't it? So that could be one of the best approach. So in this context जो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, तो in this context recently scientists have found that, or we can say that rediscovered the wild coffee species, isn't it? And you can see here that like I told you that कि जो कॉफी अरेबिका है और जो रोबस्टा है मेनली वो लीड करती हैं ग्लोबली, एंड थर्ड वन इज योर लिब्रिका कॉफी विच हैज कंट्रीब्यूशन ओनली लेस देन 1% इन द ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन में। बट रिसेंटली साइंटिस्ट दे फाउंड द न्यू स्पीसीज इन द फॉरेस्ट एरियाज, एंड दैट इज योर कॉफिया स्टेनोफाइला, okay, Coffea stenophila, that was found in the we can say that in the forest areas of you can see here that Coffea stenophila Africa में, so you can see that this Coffea stenophila new species it was found in the forest area of Guinea and Ivory Coast areas में, okay, so this new species Coffea stenophila it has been found, okay, rediscovered, and it was rediscovered in the dense forest of Sierra Leone, and
we can say that the scientists have rediscovered this species in the forest wildly in the forest areas of Guinea, Sierra Leone and Ivory Coast. ठीक है, and they have speculated, or they when they analyze this species, actually the beans of this species, so they found that the beans of this species, they, or we can say that this Coffea stenophylla जो है, actually it has the heat tolerant characteristics, means it is tolerant to somewhat warmer temperature and as compared to your Arabica coffee, that is one of the leading predominant coffee throughout the world. So इसमें जो है वो Arabica coffee से ज़्यादा टेम्परेचर को बीयर करने की जो है एबिलिटी है. इट कैन टॉलरेट द वार्मर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू योर अरेबिका कॉफी, एंड इट आल्सो हैज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर दैट इज इक्विवेलेंट टू अरेबिका कॉफी और इवन सुपीरियर देन अरेबिका कॉफी. So both the characteristics of this Coffea stenophylla, they are desirable, isn't it? So जब उन्होंने एनालाइज किया तो वी कैन सी दैट की जो Coffea arabica है, दैट इज एनसर्कल्ड इन दिस वन Coffea arabica, तो इसका जो टेम्परेचर है, एनुअल मीन टेम्परेचर जो है रिक्वायरमेंट जो है Coffea stenophylla का, जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, तो दैट इज योर 24.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो Coffea stenophylla का. ठीक है, and we can say that this is 1.9 degrees centigrade higher than the Robusta coffee and up to 6.8 degrees centigrade higher than the Arabica coffee. So you can see the comparison कि जो अरेबिका कॉफी से जो है इसका ये 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर जो ये टॉलरेट कर सकती है, और रोबस्टा कॉफी से 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा टॉलरेट कर सकती है, जो ये न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है Coffea stenophylla जो है. ठीक है, so in this way we can see that you can see that it has the heat tolerant or drought tolerant feature and flavor also equivalent to your Arabica coffee. So actually lost and found rediscovered species इसलिए कहा गया क्योंकि it has the lost and found characteristics. Actually आप देखें तो जो ये वाइल्ड फॉरेस्ट हैं सीरा लियोन के, तो इन ड्यूरिंग सिंस 1954, ठीक है, it was not seen anywhere wildly in those forest areas. Okay, since 1954. ओके, एंड आइवरी कोस्ट की बात करें तो वहाँ भी 1980s के बाद इसको नहीं देखा गया था. इट वाज नॉट फाउंड वाइल्ड इन द मींस आफ्टर 1980s के बाद. ठीक है, सो वी कैन सी दैट दिस वाज रीडिस्कवर्ड इन द रिसेंटली इन द गुइनिया एंड सियरा लियोन फॉरेस्ट एरियाज में, वाइल्ड में इसकी बीन्स जो वो डिस्कवर की गई बाय द साइंटिस्ट, एंड डेफिनेटली इट हैज प्रोवाइडेड द होप फॉर द फ्यूचर कॉफी इंडस्ट्री. एज यू कैन सी दैट कि जो ये जो कॉफ़ी है एक्चुअली इसमें हीट टॉलरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरी बात ये कि फ्लेवर भी इक्विवेलेंट टू अरेबिका कॉफ़ी के हैं. सो इट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी वैराइटीज रिजिलेंट टू द क्लाइमेट चेंज और which are tolerant to the higher temperature and have the characteristic flavor. Or it can we can say that this Coffea stenophylla, it could be as it has provided a hope for the proof of you can say that it has provided the hope for the proof saving of coffee industry for the future coffee industry. So this is one of the we can say one of the important discovery है जो Coffea stenophylla find out की गई है, and definitely it will boost the coffee industry in the near future, and it is a great germplasm for the in the era of climate change for the development of varieties resilient to climate change or global warming. So with this if you like the video, please share and subscribe करें, like करें, and I will say thank you with this, and please stay happy, stay blessed, and stay safe at your home. Thank you very much.